Hello students, welcome to exam study. My name is Shailesh Sharma and in this video we will be discussing about the study of cells or the cytology. This is the branch of science that deals with the study of cells. So the first question is, who discovered cell? So Robert Hooke in 1665 discovered cell, and in the coming slides we will be discussing about the cell organelles, and after that we will be heading towards the quiz based on the topic cells. See, this is an important topic of general science, came in very various competitive examination, state PCS, RRBs, railways. So you have to watch the video till the end. So we will start the video now. If you talk about the basis of nuclear composition of the cell, the cell is classified as prokaryotic or eukaryotic. These are the basis on nuclear composition of the cell. Plant and animal cell are not on the basis of nuclear composition. On the basis of nuclear composition, cells are of prokaryotic and eukaryotic. And what's the basic difference between these two? The basic difference between these two is, we can say, of size. Eukaryotic generally is found in multicellular organism, and prokaryotic is generally found in unicellular organism. So we can say eukaryotic is larger in size. If we talk about the size of the nucleus, there is a lack of nuclear membrane in prokaryotic cell. Chloroplast, lysosome, Golgi body, all these are the cell organelles. We will be discussing about these in the coming slides. These are absent in prokaryotic cell, and the prokaryotic cell are found in virus, bacteria, blue-green algae. All these are the unicellular organism. Eukaryotic has a size of 5 to 100 micron. 5 to 100 micron nuclear membrane is found in eukaryotic cell, and the cell size is larger as compared to prokaryotic cell. So these are the basis of differences between the two cells that are classified on basis of their nuclear composition. Also, apart from this cell, if we talk about the eukaryotic cell, it is further classified as the plant cell and the animal cell. Now we will be discussing about the some common facts about the cell. See, in humans, around 10 raised to the power 14 cell exist in our body. Nucleus of the cell was invented by Robert Brown. Nucleus of the cell was invented in 1831, and the cell was discovered by Robert Hooke in 1665. Main function of cell wall is प्रोटेक्ट न्यूक्लियोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। जो अंदर के पार्ट्स होते हैं सेल के, जो न्यूक्लियोप्लाज्म, और अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो उनको बचाना मेन फंक्शन होता है सेल वॉल का। और लेकिन ये सेल वॉल जो है सब सेल्स में नहीं पाई जाती। मैंने आपको बताया कि यूकैरियोटिक को आप प्लांट और एनिमल सेल में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो सेल वॉल का फीचर है ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि प्लांट सेल को अगर एक्सटर्नल अटैक से जो बचाव है वो ज़्यादा प्लांट सेल में है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। दूसरी बात हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर का जो होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। लाइसोसोम जो होते हैं वो उनका काम होता है कि जो सेलुलर डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ हैं, जो पाचन क्रियाएं हैं, उनको इनिशिएट करना या उनको बढ़ाना सेल के अंदर। लेकिन कभी कभार जब इनको डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं मिलते तो ये बर्स्ट हो जाते हैं अपने आप ही, और इनका जो फ्लूइड है वो सारा का सारा सेल में फैल जाता है। दिस इज़ द रीज़न इनको सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनको नहीं मिले डाइजेस्ट करने के लिए, इन्होंने अपने आप को बर्स्ट कर दिया। तो ये इस कारण से सुसाइडल बैग्स के नाम से भी जाने जाते हैं। इनको डाइजेस्टिव वेसिकल्स तो कहा ही जाता है, यानी डाइजेस्टिव बैग्स। क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ जो होती है वो सारा लाइसोसोम्स ही देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल का पावर हाउस होता है। जितनी भी एनर्जी सिंथेसिस होती है हमारी सेल के अंदर, वो सारा का सारा माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। देखिए, रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो एनर्जी जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रोड्यूस होगी ज़्यादातर। किसके फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी को हम लोग बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट।
दूसरी चीज़ जो सेल के अंदर पाई जाती है वो होती है प्लास्टिड। प्लास्टिड केवल प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, जो एनिमल सेल्स हैं उनमें प्लास्टिक नहीं होते, और शेप इसकी रिजेंबल करती है माइटोकॉन्ड्रिया से। प्लास्टिड्स के अंदर ही अगर हम पढ़ें तो तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट बोल के होते हैं ऐसे पार्ट्स में पाए जाते हैं जिनमें सनलाइट जो है नहीं पहुंच पाती जहाँ तक, जैसे कि अगर हम रूट्स वगैरह की बात करें तो रूट्स वगैरह में आपको ल्यूकोप्लास्ट मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जिसके अंदर मैग्नीशियम की अच्छी खासी क्वांटिटी होती है। पिगमेंट लाइक जेंथोफिल और कैरोटीन और ऑल्सो फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, और इस कैरोटीन की वजह से ही जो पौधे की जो लीव्स हैं वो पीली पड़ जाती हैं। क्रोमोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो कलर्ड पार्ट जो होता है प्लांट का, उसके अंदर क्रोमोप्लास्ट होता है अदर देन क्लोरोफिल। जितने भी रेड, येलो, ब्लू कलर है वो सारा का सारा क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही है। आप अगर हम बात करें सेब के अंदर का जो पोर्शन है वो रेड है, या सॉरी अगर हम नींबू की बात करें, नींबू पीला है। ये सारे के सारे कलर्स उनको क्रोमोप्लास्ट ने ही प्रोवाइड कराए हैं, जो कि केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि जो क्रोमोसोम है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो क्रोमोसोम होता है वो किससे बने होते हैं, तो वो बनाता है डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। ये तीन कंपोनेंट होते हैं जिससे कि क्रोमोसोम बना होता है। अगर हम बात करें कि प्रोसेस को क्या बोलेंगे, देखिए डीएनए जो है हम आरएनए से बना सकते हैं डीएनए, और उस जो प्रोसेस को बोलते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सेंट्रोसोम की अगर बात करें तो सेंट्रोसोम प्लांट सेल में नहीं होता। जनरली बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं जो प्लांट सेल में होते हैं लेकिन एनिमल में नहीं होते। तो सेंट्रोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो एनिमल सेल में तो पाया जाएगा लेकिन आपको प्लांट सेल में नहीं मिलेगा। वैक्यूल्स की बात कर ले तो वैक्यूल्स आर लाइक स्टोरेज सैक्स, जो बोरे टाइप होते हैं उनको हम वैक्यूल्स बोलेंगे। होते दोनों ही सेल में हैं, बस फ़र्क इतना है कि एनिमल सेल में इनका साइज़ छोटा होता है, प्लांट सेल में इनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। सेल डिवीजन यानी जो सेल है वो डिवाइड हो रही है एक से ज़्यादा डॉटर सेल में, ऐसे जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं सेल डिवीजन। और ये जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है इसको तीन पार्ट में हमने क्लासिफाई कर रखा है, एमिटोसिस, मीटोसिस और मियोसिस। ये तीन पार्ट हैं। जो एमिटोसिस है वो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। मीटोसिस में दो आइडेंटिकल सेल्स जो हैं प्रोड्यूस होती हैं, और म्यूसिस की अगर मैं बात करूँ तो इट अकर्स इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर जो सेल डिवीजन होता है दैट इज़ नोन एज म्यूसिस, और उसकी वजह से जो गैमेट्स हैं, सेक्स सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ये आपको कुछ डिफरेंसेस दिए हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में। ये प्लांट सेल के बारे में है। सेल वॉल होती है, इसमें सेल वॉल नहीं होती। लेकिन सेल वॉल नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं कि न्यूक्लियस कवर नहीं होता। न्यूक्लियस कवर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इसमें सभी प्लांट सेल में लगभग क्लोरोफिल पाया जाता है। एनिमल सेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। सेंट्रोजोम की अगर हम बात करें तो दैट डजंट अकर इन प्लांट सेल, और सेंट्रोजोम होता है एनिमल सेल में। दिस इज द पार्ट दैट टेक्स पार्ट इन सेल डिवीजन प्रोसेस। जो सेल डिवीजन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर सेंट्रोजोम रोल प्ले करता है। लाइजोजोम्स की अगर हम बात करें तो दैट डजंट यूजुअली डजंट अकर इन प्लांट सेल, बट एनिमल सेल्स में लाइजोजोम पाए जाते हैं। और लाइजोजोम को हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। क्यों बोलते हैं, हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है। सभी लगभग सभी प्लांट में सेंट्रियोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो लगभग सभी एनिमल्स में सेंट्रियोल्स एग्जिस्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा बहुत क्विज की, और इसके आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। नेम द प्रोसेस in which the ingestion of the material by the cell। ingestion होता है जो जब भी कोई चीज़ इनका इंटेक किया जाता है उसको हम लोग इंजेक्शन बोलते हैं। in which the ingestion of the material by the cell is done through the plasma membrane। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर से कोई चीज़ जो आपको प्रोवाइड की जाए उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इजेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस या
एंडोसाइटोसिस, देखिए मैं आपको सबके मतलब बता देता हूँ। इजेशन होता है किसी भी चीज़ को अपनी बॉडी से बाहर करना, वो इजेशन होता है। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस आर रिलेटेड टू द वाटर मूवमेंट फ्रॉम द लोअर टू हायर, हाई टू लो। और एंडोसाइटोसिस होता है किसी जो एक्सटीरियर मटेरियल का इनटेक जब होता है वो हो पाता है। ये इस प्रोसेस का नाम है एंडोसाइटोसिस। डी इज देयर आंसर। लेकिन ये किस सेल में पाया जाएगा ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंडोसाइटोसिस जो है पूरे प्रोसेस का नाम है, किस में पाया जाएगा आप लोग मुझे बताएंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी की अगर हम बात करें तो क्लासीफाई की जाती है किसके अंदर, यूक्राइटिक, प्रोक्राइटिक, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आप लोग देंगे। इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट रहता है एनिमल सेल में, सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम, सेल वॉल या सेंट्रोजोम। देखिए इसमें बस इतना बता पाऊंगा कि सेंट्रोजोम तो एनिमल सेल में होता ही होता है, क्योंकि उस सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है वो सेंट्रोजोम, उसको होने के लिए सेंट्रोजोम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाकी के आपके 3 ऑप्शन रह गए, इनमें से आपको देखना है कौन सी चीज़ एब्सेंट है एनिमल सेल्स में। ये था आपका वीडियो रिगार्डिंग सेल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।